प्रिय दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा स्वागत है। आप सभी को Dear friends, I welcome you all in the name of our Lord Jesus Christ. आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं नमस्कार करता हूँ। I greet you all in the name of Jesus. आप सब लोग कैसे हैं और आपका परिवार कैसा है? How are you all and how is your family? उस दयालु पिता परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग फिर से आराधना और प्रार्थना के लिए जुड़ रहे हैं। We are meeting again to praise that great God, to worship Him. आप तमाम भाई बहन, अजीज, बुजुर्ग, बड़े छोटों को सभी को मैं स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में। I welcome all the elders, the youngers and everybody in the name of our Lord Jesus in this program. मुझे बहुत आनंद आता है जब आप सब लोगों को इस प्रकार से ऑनलाइन देखता हूँ। I really feel happy when I see all you people like this online. आज दो बातें हैं, एक तो खुशी का दिन है, एक दुख का दिन है। So today is two things that one is good news and the bad one. खुशी की बात यह है कि आज मेरा जन्मदिन है। The happiest thing is that today is my birthday. दुख की बात है कि एक साल मेरे जीवन में कम हो गया। And the sad thing is that 1 year of my life has been decreased less. राजा दाऊद एक बात कहता है, King David says, है परमेश्वर, "Oh Father, तू मुझे मेरे दिन गिनना सिखा दे। you teach me to number my days." मुझे परमेश्वर Father, मेरे दिन गिनना सिखा दे। ये you कहता teach me to count my days. है। सोलोमन एक बात ये कहता है, King Solomon says one thing. राजा सोलोमन ये कहते हैं, King David Solomon says, किसी के जन्मदिन से बेहतर उसका मरण दिन होना चाहिए। now instead of the birthday, the death day should be better than that. क्योंकि जीवन की सच्चाई ये है, Because this is the truth of life. क्योंकि हमें मरना है और इस दुनिया से जाना है। Because we have to die and we have to leave this earth. और बेहतर होगा कि And it would be better हम that. जाने से पहले कुछ ऐसा कार्य कर जाए प्रभु के लिए, देश के लिए और अपने माता पिता के लिए। So we, before leaving this earth, we should do something good for our country, for our parents, ताकि देश हमें याद रख सके, so that people will remember us. माता पिता या हमारे भाई बंधु भी हमें याद रख सके। And our parents and our relatives, they will also remember us. परमेश्वर के पवित्र वचन में इस प्रकार से कहता है, In the Holy Bible, it is written, मेरा धर्मी दास अनेकों को धर्मी बनाएगा। "My righteous men will make all the people righteous." सभी लोगों को धर्मी He'll बनाएगा। make everybody righteous. हो सकता है हम पूरी दुनिया को ना बनाए, Maybe we cannot make all the world जितना हो righteous, सके हम प्रभु की सेवा में भी समय दें। but we have to give our life, our time to the presence, to the service उस of महान God. परमेश्वर का धन्यवाद हो। Let us all praise that great इस God. दुनिया में बहुत Thank से you. लोग आए और चले गए। They come many people and they left even. इस दिन को ना देखने वाले भी बहुत से लोग हैं, Now there are many who couldn't see this beautiful day, लेकिन उस परमेश्वर ने but that great God मुझे संभाला। protected us. 15 मई 1989 से लेकर अब तक 79 मुंडी हिला रही, कुछ बोलो क्या। 1979 से लेकर अब तक परमेश्वर ने संभाला है। From 1979, 15 मई 1979 से लेकर अब तक परमेश्वर ने मेरी रक्षा की। God protected me from 15th May 1979. मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ I thank that great God कि उसकी महिमा में उसने जिंदा रखा। that He kept me alive for His worship, for His यदि glory. मैं सच पूछूं, If I really ask, 1999 में in जब मेरी 1999, दोनों किडनियां खराब हो गई थी, when my kidneys were spoiled, डॉक्टर ने कहा कि ठीक नहीं हो सकता। doctor said that you could not get well. वास्तविकता के अंदर तो उसी दिन मैं मर गया था। The reality was that I died on that day only. उस महान परमेश्वर की कृपा, यीशु की दया मेरे जीवन में हुई। There was glory and the mercy of God in my उस life, परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी and He healed me. और मेरे यीशु के साथ में And with my Jesus, लगभग 21वां साल कंप्लीट कर रहा हूँ। and I'm completing my 21 years. प्रभु का धन्यवाद हो। Let God be praised. पौलुस ये कहता है,
Paul says, जी चाहता है कि मैं तेरे पास आ जाऊं, my soul wants to come with you, Father, लेकिन इच्छा है but desire is, कुछ और तेरी सेवा करूं। let me serve the world a little bit more. मन करता है कि कुछ और तेरी महिमा को गाऊं। My heart says to praise you more, Father. मेरे अजीजों, My dear friends, हमारा जीवन our life उस परमेश्वर की महिमा के लिए भी होना चाहिए। should be for the glory of that God. कुछ ऐसा भी समय हमें निकालना चाहिए We need to make such time उसकी also आराधना, प्रार्थना, भक्ति के लिए भी। for His worship, for His devotion, for His praise. जैसे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, The way food is necessary for the body, वैसे ही आत्मा के लिए प्रभु की वाणी, भक्ति, प्रार्थना, सत्संग भी जरूरी है। in the same way for the soul, the devotion, the prayers, the worship, and the word of God is also necessary. आइए उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में Come, let us all अपनी आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना में Let जाएं। us close our eyes and we will pray. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, Almighty God, आपकी स्तुति और धन्यवाद करते we हैं। praise and thank you आपने जीवन दान दिया for है, you gave us the life, एक साल और आपने बढ़ाया है, gave us one more year. आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you, Father. पिताजी, Father, जितने भी हमारे भाई बंधु ऑनलाइन आते हैं, those who are brothers and sisters who are coming online, उन पर, उनके देश पर तेरी दया और तेरी कृपा बनी रहे। let your mercy and kindness be on them and on their countries. यदि कोई बीमार है, परेशान है, जरूरतमंद है, There is somebody needy, sick, Father. प्रभु उनके लिए आप मददगार को तैयार करें और उनको सहायता करें। You prepare the helpers, the supporters for them, and Father, you help them. प्रभु आपका धन्यवाद करते Thank हैं। you, Father. तमाम उन भाई बहनों, बुजुर्ग, अजीर, बच्चों को, तमाम लोगों को जो प्रोग्राम देखते हैं, I pray for all the उन elders, सभी को children, तू for all the आशीषित कर। people, those who are watching this program. You bless each one of them. यीशु मसीह के नाम से In the name of Jesus, आप सभी को आशीषित करें। you bless everyone. धन्यवाद हो प्रभु, Thank you, Father, आपने हमारी प्रार्थना for you सुनी। listened, heard our prayers. प्रभु यीशु के पवित्र In the holy नाम, name of Jesus. आमीन, Amen. आमीन। Amen. हमने 2011 में एक सीडी बनाई थी, So we made a cassette CD उसी का in एक 2011. गीत है, भजन है, उसको गाकर हम This प्रभु is की the स्तुति song. करेंगे। From that we will sing and praise God. लोग कहते हैं खुदा का काम कल कर लेंगे हम, कल से पहले चल बसे तो क्या कर लेंगे हम। न जाने मेरी मौत का पैगाम कब आ जाए, मेरी जिंदगी की आखिरी शाम कब आ जाए। सदा रहते हैं ऐसे मौके की तलाश में कि मेरी जिंदगी मसीह के काम आ जाए।
यीशु से आज तुम फरियाद करो, खुदा से डरो प्रचार करो, खुदा से डरो प्रचार करो, प्रचार करो, प्रचार करो, प्रचार करें, प्रचार करें। स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर कोई दूजा नाम नहीं है, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर कोई जिसके द्वारा मुक्ति मिले अब ऐसी आश नहीं है, जिसके द्वारा मुक्ति मिले अब ऐसी आश नहीं है। स्वर्ग के नीचे, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर कोई दूजा नाम नहीं है, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर कोई दूजा नाम नहीं है, जिसके द्वारा मुक्ति मिले अब ऐसी आश नहीं है, जिसके द्वारा मुक्ति मिले अब ऐसी आश नहीं है। प्रभु यीशु से आज तुम फरियाद करो, प्रभु यीशु से आज तुम फरियाद करो, खुदा से डरो प्रचार करो, खुदा से डरो प्रचार करो, प्रचार करो, प्रचार करो, हम चार करें, प्रचार करें, हम चार करें, प्रचार करें। धन्यवाद हो आप सभी का। Thank you, everybody. अच्छा लग रहा है। If people feeling good, आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएं और प्रभु की वाणी को हम लोग सुने। let us all go to the Word of God. Let us all listen to the words of God. ये बहुत अच्छा है कि हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग बढ़ते जा रहे This हैं। is really good that we are growing in the presence of God day by day. क्या आप सब लोग को अच्छा लग रहा है प्रोग्राम? Are you all liking this program? Is it good? परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। God bless you all. इस समय हम परमेश्वर की शिक्षाओं के बारे में सुन रहे थे। At this moment, we were learning about the teachings of Christ. प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के अंदर हमने सीखा कुछ बातें In the teachings of Christ, we learned a little bit things कि वो सच्ची शिक्षा और मुंह पे ही दिया करते थे। that He used to give the true teachings on the face, right straight away. और यदि हमने दूसरी बात यदि देखा The जाएंगे second तो thing when we saw प्रभु यीशु मसीह की सादगी के बारे में हमने सुना। about the fellowship of Christ. वो घरों को तोड़ने वाली बात नहीं, वो घरों को बनाने वाली Now बात the करते हैं। words, the teachings were not of breaking the house, but to making of houses. प्रभु यीशु मसीह खुद इंसान बनकर धरती पर आया और इंसानों के बीच में रहकर उसने ये शिक्षाएं दी।
Now Jesus came down to earth as human and he gave these teachings to the people. और तीसरी बात हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य क्या था। The third thing we saw, what was the purpose of Jesus? प्रभु यीशु मसीह ने जीने का उद्देश्य बताया। He told, preached the वे धरती purpose पर of क्यों आया वो living. बताया। He told us why did उसने he कहा came on मन this फिराओ, earth. स्वर्ग का राज्य निकट He है। said, repent from your sins for the kingdom of God is at hand. आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में मत्ती की पुस्तक अध्याय 5 का वचन 22 की ओर ध्यान लगाएंगे Let अभी। us read book of Matthew chapter 5 verse 22. इंसान की जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण है। Now what the teachings of Christ are really important for the life of human. ये केवल क्रिश्चियन लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए, रोमियो के लिए, इटली वासियों के लिए, यूएसए वासियों के लिए नहीं है। Now this is not only for all the countries but for everyone. ये हर एक व्यक्ति के लिए है जो अपने आप को इंसान या मानव कहता है। Now those who all say that I'm human, it is for everyone. अध्याय 5 के वचन 22 में प्रभु यीशु मसीहा कुछ बातें नैतिकता की कहते हैं। Now Jesus talk about good teachings like from Matthew chapter 5 verse 22. पढ़ेंगे हम लोग मत्ती के रचित सुसमाचार की पुस्तक अध्याय 5 का वचन 22 में। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। ओह माय गुडनेस। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कुछ बातें कहता है, आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के की कोशिश करिएगा। This is my request to you all. Please try to listen. यहाँ कह रहा है जो कोई भी अपने भाई को ये कहता है यह निकम्मा है, ये बेकार है, ये ठीक नहीं है। Now those who all say that my brother or this brother is useless, he's not good, he's not correct. यदि आज के जमाने में देखा जाए तो ये शब्द जो है वो So if you see these days in this generation, every other person uses this word. आसानी से एक दूसरे पर उंगलियां उठाना, They easily point out others. वो सरकार बेकार है, That government is ये wrong. सरकार बेकार This है, party is वो wrong. बहन गलत है, That sister is ये wrong. भाई गलत This है, brother is wrong. वो पादरी गलत है, That pastor is ये wrong. पादरी गलत है, This pastor is ये wrong. चर्च खराब है, This church is वो not चर्च good. खराब है। That church is not कई good. बार आसानी से हम लोग उंगलियां उठाते Many हैं, times we easily point out. लेकिन प्रभु यीशु मसीह जीने की नित्यत्वा की बातें करते हैं। But Jesus is talking about the reality, the goodness of living. वहाँ प्रभु यीशु मसीह का कलाम ये कहता है कि परंतु मैं तुमसे ये कह देता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य ठहर जाएगा। It says, but I say to you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. मेरे अजीजों, My dear friends, परमेश्वर के वचन के अंदर भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 22 का देखेंगे हम लोग। let us see. बुक ऑफ सैम्स चैप्टर 37 वर्स 8 में पढ़ेंगे। 37 वर्स 8 में जी क्या कहता है यहाँ पे? क्रोध से परे रहे, क्रोध से परे रहे, जलजलाहट को छोड़ दे, आहा, मत कुड़, उससे बुराई ही निकलेगी। क्या हो जाता है? What happens? मेरी बात समझ पा रहे Are हैं? you getting my point? प्रभु यीशु मसीह की ये बातें हैं। These नीति are the वचन words की of पुस्तक Christ. अध्याय 14 के वचन 17 में कहता है, Book of Proverbs chapter 14 verse 17 यहाँ says, भजनकार इस बात को लिखते हुए कहता है क्रोध को अपने जीवन से दूर कर दे He says that cease from anger और जलजलाहट को अपने हृदय से दूर कर दे। and forsake the wrath from your soul. मेरे दोस्तों, My dear friends, क्रोध अच्छे अच्छे रिश्ते को खराब कर देता now है। the anger spoils the good relationship. शांति और समाधान से रहने वाले घरों को बर्बाद कर देता है क्रोध। The anger destroys the houses which are with peace. इसलिए प्रभु यीशु मसीहा कहते हैं That is why Jesus says, तेरे क्रोध के कारण तू कुछ भी कमा नहीं पाएगा। because of your anger you cannot earn anything. मेरे पिताजी कहते थे, My father used to हो say, सकता आपके भी बड़े बुजुर्ग इन बातों को कहते maybe होंगे, your elders also say this. इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है उसका क्रोध, उसका गुस्सा, उसका घमंड, उसकी आंखें, उसका चढ़ती हुई बातें। The main, the great, the biggest enemy of the human is his own anger. यदि आप जेल में यदि कभी घूम कर आए हैं या विजिट करके आए हैं, वहाँ पर बहुत से ऐसे कैदी लोग मिलते हैं, जब उनसे हम लोगों ने बात किया वो कहते गुस्सा आया, मैंने मार दिया उसे। Now when you visit the prisons or the jail, when you talk to those prisoners, they will say मेरी that बीवी ने because मेरे साथ गलत करा।
that my wife did wrong with me. मेरे बेटे ने मेरे को गलत बोला, My son said something wrong ओ to मेरी me. पत्नी जी ने मुझे शब्द गलत कहे, Now my wife said something wrong मैं to me. गुस्से को कंट्रोल नहीं कर I पा couldn't साहब। control my anger. मेरे अजीजों, My dear friends, प्रभु का वचन कहता है, the word of God says 37वें अध्याय में कहता है, in 37 क्रोध को अपने मन से दूर करने की जरूरत है। you have to take away the wrath from कई your बार heart. मसीहत में लोग आने के बाद भी, Many times after, यीशु मसीहा को अपना प्रभु मानने के बावजूद भी, even after accepting Jesus बहुत as से the लोगों Lord, के जीवन में क्रोध मौजूद होता in है। many people's life there is anger still आप और हम remaining. जब यीशु को अपना प्रभु मानते You हैं, and me, when we accept Jesus as ना Lord, केवल हमारे वस्त्र या हमारा व्यवहार या हमारा रास्ता बदलना चाहिए, not only our transformation should be the clothes or our characteristics and all, हमारे जीवन के अंदर यानी कि हृदय भी साफ हो जाना which चाहिए। means our heart, our inner soul also needs to be changed. मैंने कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना है, Now I heard many times, मैं उसके people घर say, नहीं जाऊंगा, I will not go to मैं his उसके house. पास नहीं I will जाऊंगा, not go to him. मैं यीशु को मानता हूँ, I believe in मैं Christ. चर्च में जाता I हूँ, attend the church. मैं बाइबल पढ़ता I हूँ, read the Bible. मैं वहाँ जाता I हूँ, go with मैं them. इधर जाता I go हूँ, over लेकिन here, but मैं उसे माफ नहीं कर I सकता। will not forgive him. प्रभु यीशु मसीह कहता है, Jesus says. ये इंसानों को इंसानियत की बातें ही तो कहता है प्रभु। Now God teaches the क्या human, the कहता है, दोबारा पढ़ेंगे humanity. हम लोग इसको 37 के 8 में जी। क्रोध से परे रहे आहा, और जलजलाहट को छोड़ दे, आहा, मत कुड़ो, उससे बुराई ही निकलेगी। इससे क्या होगा? What will happen? क्रोध यदि मन में भरा रहेगा तो बुराई आपके हृदय में जगह कर जाएगी, और बुराई जब बढ़ जाएगी तो पाप को उत्पन्न करेगा, पाप जब बढ़ जाएगा तो मौत को उत्पन्न करेगा। मौत का मतलब है अनंत काल की आग, ईश्वर से अलग हो जाना। When you will have anger in your heart, you will get the jealous, and jealous begotten sin, and when you have the sin, it will take you to the death, to the hell of fire. नीति वचन की पुस्तक अध्याय 14 का वचन 17 में कहता है, Proverbs chapter 14 verse 17 says, क्या कहता है? जो झट से क्रोध करे, जो झट से क्रोध करे वह मूढ़ता का काम भी करेगा। वो क्या कर देगा साहब? what will you do? मेरी बात समझ पा रहे हैं? Are you getting my point? प्रभु यीशु मसीह ने कुछ शब्द कहा है Jesus said some words. तो उसका बहुत बड़ा मीनिंग होता है। Then there is a big meaning hidden in it. कुछ लोगों को नाक पे गुस्सा होता है, Now people have anger really कुछ hurt. लोगों के शरीर पे इतनी ताकत होती है, Some people have really energy in their जब तक वो bodies. अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट करके वो फाइन भर के नहीं आते तब तक गुस्सा कम नहीं होता। Until they make their vehicles in accident and they pay the offense, until that their anger doesn't get cool. मैं एक परिवार में गया, I went in a family. उन्होंने एक बात कहा They said, कि साहब जब मेरे को गुस्सा आ जाता है ना, you know, when I'm angry, कुछ ना कुछ तोड़े बगैर मेरा गुस्सा कम नहीं होता। then until I break something, I couldn't cool my anger. मेरे down. दोस्तों, My dear friends. इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, That is why Jesus says, तेरा भाई यदि कोई गलती करता है, if your brother does something wrong, भाई का मतलब खून का भाई नहीं, now brother doesn't mean the relative one, केवल खून का ही भाई नहीं। not only blood of brother or someone. यदि हम लोग पढ़ते हैं कुरिन्थियों की पुस्तक, पहले कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 6 के वचन 9 में कहता है, जो भाई कहलाकर, 1 Corinthians chapter 6 verse 9 it says, the one who was called brother. यानी कि जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रख के अपने विश्वास की जीवन को व्यतीत कर रहा है, Which means those who ever have believed in Christ and spending their life in the commandments आप of God. हो सके तो माफ कर दीजिए, नहीं तो अपना रास्ता नापिए, अपने काम करिए, अपनी रोटी खाइए, अपनी संगति करिए, प्रभु के साथ बने रहिए। If possible, you forgive them. If you cannot, then go your own way. Spend your life in God. Be in your own way. लेकिन आप जजमेंट करने वाले ना But बने। you do not need to be the one who प्रभु judges. यीशु मसीहा इस बात को कहता है, Jesus says, नहीं तो तुझे एक दिन कचहरी में खड़ा होना पड़ेगा। or else one day you gotta stand in the prison, in the judgment. इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह कहता That है, is why Jesus जिस says, नाप से तुम दूसरों को नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा the जाएगा। way you measure others, in the same way you will also be measured. यानी कि जो व्यवहार तुम दूसरों के प्रति कर रहे हो वो व्यवहार तुम्हारे साथ भी किया जाएगा। Which means the behavior you are keeping for others, in the same way the behavior you will also get. आप सोच रहे हैं कि मैं उसकी चुगली न कर रहा हूँ, मेरी चुगली कोई नहीं करेगा। You're thinking that if I'm telling bad about someone, nobody will tell about you. यदि किसी की चुगली करूंगा तो 4 लोग मेरी भी चुगली करने के लिए तैयार हो जाएंगे। If I will say something bad about others, then there are people who will get ready to say bad to me. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है,
That is what Jesus says. परमेश्वर ये कहता है, Jesus says, परंतु मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने सब बताए क्या होगा फिर? what will happen? वो दंड के योग्य होगा। सब बताए क्या हो जाएगा? भाई का मतलब क्या होता है What साहब? does brother mean? पढ़ेंगे हम लोग उसी के अंदर नीति वचन की पुस्तक अध्याय 14 का, हम लोग आगे पढ़ेंगे उसी पद के अंदर, अध्याय 14 का वचन 29 में पढ़ेंगे जी, 29 में। जो विलंब से क्रोध करने वाला है आहा, वह बढ़ा समझने वाला है, आहा, परंतु जो अधीर है वह मूर्खता की बढ़ती करता है। पढ़ेंगे इफिसियों की पुस्तक अध्याय 4 का वचन 6 भी पढ़ेंगे। Ephesians chapter 4 verse 6. इफिसियों की पुस्तक अध्याय 4 का वचन 26 भी पढ़ेंगे जी, 26। मुझे आशा है आप क्रोध तो करो साहब, पर पाप मत करो। आहा, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। नहीं नहीं नहीं, हम कोर्ट में जाके फाइल केस करेंगे, हम एफआईआर दर्ज करेंगे, हम लड़ते रहेंगे। No, we will not be cool down. We will not be in peace. We'll go to court. We will be keeping fighting and all. मैं दूसरों की बातें क्या कहूँ? Why should I say about somebody else? एक व्यक्ति प्रभु की आराधना करता है, One person praises God. वो भी चर्च में जाता है, ये जनाब भी चर्च में जाते He हैं, also attend the church and this one also attend. दोनों ही चर्च में जाते हैं, Now they both are attending the church. दोनों मसीह लोग हैं, They both are Christians. दोनों यीशु को मानते They हैं। both believe in Jesus. कभी गलती से एक्सीडेंट हो गया, And by mistakenly one day they were in accident. पता नहीं था, हो गया गलती से, So it was a mistake. It was an accident. उन्होंने भी केस कर दिया। ये भी बेचारे बोले भैया जब नहीं मान रहे तो तुम्हारी मर्जी। So that person filed a case and this person, okay, if you're not believing, okay, right, I'll also file अभी a case. 5 से 6 साल हो गए, दोनों कोर्ट में जाते हैं। It's been 5 to 6 years and until today they attend the court. क्रोध तो करो Be angry, लेकिन पाप मत करो, but do not sin. शाम होने से पहले उसे माफ कर दो। Now and before the sun goes down, you forgive them. लेकिन हमारी अंदर से माफी नहीं निकलती। But the forgiveness from us या doesn't come प्रभु outside. कहता है, The God परमेश्वर का वचन कहता है, says, the word of God says, यानी कि अपने भाई को निकम्मा कहने का अधिकार तुम्हें किसी ने नहीं दिया है। which means nobody gave you the authority to say useless to your brother. हो सके तो माफ करे, If possible, you forgive them, वरना अपना काम करे, प्रभु में बने रहे or आप। else do your work and be with God. 4 जगह ये निकम्मा है, ये गलत है, वो बेकार है, वो ये बातें सुन सुन के कान में पक जाती है। Now you will tell keeping others say this is bad, that is bad. It चाहे हम hurts your ears. हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, किसी भी धर्म जाति मजहब से हम क्यों ना बिलोंग्स होते हो। Maybe we could be of any religion, any caste, or we could be of any country. मैं आपके सामने एक और वचन रखना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक अध्याय 26 के वचन 59 में एक बात कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक में, मत्ती की पुस्तक अध्याय 26 का 59 के अंदर Book of Matthew chapter 26 verse 69. यहाँ पर इस प्रकार से कहता है कि प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे, परंतु बहुत से झूठे गवाहों को आने पर भी ना पाया। अंत में 2 जन गए। यहाँ जी, बहुत से झूठे गवाहों को लेकर आने के बावजूद भी यीशु पर एक भी गुनाह साबित नहीं हुआ। Now when they brought all the chief priests and all the people, those who were saying wrong against Christ, now still Jesus was not found wrong or any folly. यदि यीशु मसीह अपने जीवन में कुछ भी गलत किया होता, If Jesus would have done something wrong in his यदि life, यीशु मसीह कहीं पर भी अपने वचन के आधार पर जीवन को व्यतीत नहीं किया होता, if Jesus wouldn't have spent his life in truth, तो यीशु मसीह के ऊपर वो गुनाह साबित हो जाते हैं। then these sins would have been in the way they are saying. हम पढ़ेंगे याकूब की पुस्तक अध्याय 3 के वचन 6 में क्या कहता है। Let us read book of James chapter 3 verse याकूब 6. की पुस्तक इब्रानियों के बाद में जो पुस्तक है उसे याकूब की पुस्तक 3 का वचन 6 में क्या कहता है। 3 जीभ का भी 6। एक आग है, ओए होए जी, जीभ भी
एक आग है, एक आग है। जीव हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, हाँ, और सारी देह पर कलंक लगाती है, और जीवन गति में आग लगा देती है, और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। अपने जीव के वजह से ही Because of your tongue, बहुत से लोगों के घर टूट गए। now the house of many people it broke. इस जुबान के वजह से Because of this tongue, अच्छे अच्छे परिवार good families, एक दूसरे के दुश्मन बन गए। they became one another's enemy. इस जीव के वजह से Because of this tongue, कई पति पत्नी टूट के एक दूसरे से अलग होकर रहे many हैं। husbands and wives are broke down, they are living separately. आपके भी कितने दोस्त होंगे You may also have many जो friends, आपसे भी नफरत कर रहे those who हैं। hate you. कारण क्या है मालूम The है? reason is, जीव जो है उसे काटने के लिए नहीं कहता, now it doesn't say to cut and chop down the उसको tongue. सुधारने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहता Jesus है। says that you correct it. मेरे दोस्तों, My dear friends, इस जीव को this tongue, हमें सही रीति के लिए भी इस्तेमाल कर we have सकते to हैं। use it for the good things. इसीलिए परमेश्वर के वचन नीति वचन में ये कहता है, That is why in the Bible, book of Proverbs, जिसने it जीव पर कंट्रोल कर लिया says those who controlled his tongue, उसने अपने जीवन की बातों को प्राप्त कर now लिया। he got the words of his life. जिसने अपनी बातों को, The one, his words, कुछ लोगों को बहुत बोलने की आदत है। some people have a habit of talking too much. सामने वाला सुने या ना सुने, उन्हें अपनी पूरी बात कहनी Now है। the person should listen or not listen, but they have to speak it. उनकी एक आदत बनी होती है, It's been their habit. हमें बोलना है बस। We just need to speak. क्यों बोल रहे कुछ लोग को ये भी पता नहीं होता। And still many people do not know what are they आदत speaking पड़ी and why होती है। are they speaking. It's just a habit. जो 10 मिनट की बात है 4 घंटे भी बोलते हैं। Now the thing which is of 4 minutes, they बाइबल बोलने के लिए मना नहीं करती, now Bible doesn't say that you do not बाइबल speak. कोई भी शब्द मना नहीं करती। No, Bible doesn't. बाइबल कहते हैं कि तुम बहुत बोलो, Bible says you speak a lot, लेकिन ऐसा बोलो but speak as if जैसे प्रभु का वचन हो। as if the oracle of God. वो चीज नहीं हो पाती। This we cannot जब do. हम परमेश्वर की वाणी नहीं बोल When सकते, we cannot speak the word तो of हमें God, दुनिया की बातों को सोच समझ कर कहना चाहिए। then we have to speak the worldly things with the mind, with understanding. मेरे अजीजों, My dear friends, यहाँ प्रभु का वचन कहता है, the word of God says, जीव जो है the tongue शरीर में सबसे छोटी वस्तु is है, the smallest thing in the लेकिन वो body, बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े जंगलों में, बड़े बड़े शहरों में आग लगा देती but है। it breaks big houses, it puts a fire in between people in the countries. और आपके जीव के वजह से आप दोषी ठहर सकते हैं, Because of your tongue, you could be blamed. और आप अपने जीव के वजह से पापी भी ठहर सकते And हैं। you can be called the sinner because of इसलिए your हमें sin. कोशिश करना है That is why we need to try कुछ अच्छा बोले। to speak something good. लोग अच्छा सुनना चाहते हैं, Because people want to listen to प्रभु something की good. वाणी कहे। The word of God, you to share. लोगों को जरूरत है परमेश्वर की वाणी। People need the word of इस God. जीव से हम दुनिया की बातें, चुगलखोरी की बातों के वजह से हम लोग एक दूसरे को दुश्मन बनने के बजाय परमेश्वर की बातें कहे, प्रभु के नजदीक हो, लोगों को अपने पास लेकर आए। Instead of speaking the worldly things with this tongue, it is better that we need to bring people together in the presence of God. Teach them the oracle of God. परमेश्वर के वचन में पहला यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 4 के वचन 20 में पढ़ेंगे हम लोग। Book of 1 John chapter 4 verse 20. पहला यूहन्ना प्रकाशित वाक्य से पहले किताब है। यदि कोई कहे यदि कोई आप में से कुछ कहना चाहे, मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ आहा, और अपने भाई से बैर रखे, तो वह झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से, जिसे उसने देखा है, प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी, जिसे उसने नहीं देखा, प्रेम नहीं रख सकता। मेरी बात समझ पा रहे हैं? Are you getting my point? तुम्हारे सामने जो भाई है, Now the brother in front of you, तुम उन्हें ही माफ नहीं कर पा रहे हो, if you couldn't forgive them, तो तुम किस चीज की पूजा कर रहे हो, किसकी आराधना कर रहे हो, किसकी महिमा कर रहे हैं? then whose worship, whose praise are you singing, or whom are you worshiping? मसीही लोग हैं, They're Christians, लड़ाई बराबर है, but the fightings झगड़े are बराबर equal. हैं। The quarrelings are equal. ओ जीव जो है इतनी लंबी फांसी लगा के मर सकता है आदमी। मेरे दोस्तों, My dear friends, मेरा यही कहना है, this is what I want to
say. आइए हम लोग कुछ मीठा बोले, Let us all speak something कुछ sweet. प्रभु की बातें कहें, Let us all speak the word. दुनिया की बातों को दूर रखें, Let us keep the worldly. उस यीशु की ओर देखें जिसने आपके और मेरे लिए क्रूस पर अपनी जान दी। Let us look at the great God who died for us. हम ये क्यों कहें कि वो गलत है, ये गलत है, इधर वाला गलत, उधर वाला गलत? Why we are telling to this silly things by our mouth? हम क्यों यह बेकार की बातें करते हैं कि ये गलत है, वो गलत है? Stop your mouth. अपने मुंह को बंद रखिए। Say, brother, how are you? आप कहिए, भाई कैसे हो? Till maybe they are wrong, you say to the thank you, God bless you. वो गलत है या नहीं है, फिर भी कहिए, परमेश्वर आपको आशीषित करे। जैसा आप बोलोगे ना वैसा ही सामने वाला बन जाएगा। The way you speak, in the same way the person will become. मेरे अजीजों, My dear friends, प्रभु का वचन कहता the है word of God says, तुम्हें बोलना है तो बोलिए, you want to speak, you speak. प्रभु की बातें हैं तो बोलिए, There are the oracles of God, then you speak it. तभी तो हम कुछ सीखेंगे भी। Then only we got to understand. कोशिश करें हम लोग। Let us all try मेरे it. दोस्तों, My dear friends, यहाँ 21वें पद में कहता है, here in 21st it says, 21वें पद में कहता है, 21st it says, 4 के 21 में कहता है, 4:21 4:21 में it says, यह आज्ञा मिले है कि यानी कि उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वे अपने भाई से भी प्रेम रखे। भाई मतलब brother means जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, the one who accepted Jesus as his savior. जिसने The one यीशु को अपना प्रभु मान लिया, वो आपका भाई है। who accepted Jesus as his Lord, as his savior, then he is your brother. जिसने कहा The one who said यीशु मेरा प्रभु है, that Jesus is my Lord, वो आपका रिश्तेदार बन गया। then he is your relative. मैं इसलिए कई बार कहता हूँ, That is why I say of मेरी रिश्तेदारी, my relationship, मेरा घराना my house, केवल इंडिया में नहीं है, not only in India, केवल आंध्रा में नहीं not है, only in Andhra, केवल महाराष्ट्र में not नहीं only in है, Maharashtra, केवल दिल्ली में नहीं है, not only in Delhi, पूरे विश्व में है, but in the entire world it is. पूरे विश्व में मेरी The रिश्तेदारी है। entire world they are my relatives. यदि मैं अमेरिका जाऊं, If I go to America, यदि मैं न्यूजीलैंड जाऊं, if I go to New Zealand, यदि मैं फिजी if I जाऊं go to Fiji, या सिंगापुर मलेशिया जाऊं, if I go to Singapore or Malaysia, मेरे प्रभु को मानने वाले मुझे मिल जाएंगे, I will get the one who believes in Christ. मेरे यीशु के पीछे चलने वाले मुझे मिल I जाएंगे। can be the one who follow the Jesus, यानी कि which means पहला यानी कि यूहन्ना की पुस्तक 1:12 में कहता है, John chapter 1 verse 12 it जो says, कोई भी उस पर विश्वास रखता है वो परमेश्वर की संतान हो जाता those who है। ever believe in Christ, he became his son, his children. अब आप और हम परमेश्वर की संतानों में गिने जाते Now you and me are counted in as the children. हैं और आप और हम परमेश्वर के बेटे और बेटियों में गिने जाते You हैं। and me are counted as sons and daughters of Christ. आइए थोड़ा कम बोलना सीखें, Let us all speak less. इस ताकत को प्रभु के लिए इस्तेमाल Let करें। us all use this strength for God. किसी एक व्यक्ति ने एक पोस्ट लिखा A था, person posted something. मसीही व्यक्ति कम बोलता है, The Christian people, the one who believes in Christ, speaks लेकिन less. जब वो बोलने लगता है But when he starts speaking, काफी कुछ बोलने लगता he है। speaks much. कारण क्या है मालूम You है? know what is the reason? वो परमेश्वर की वाणी लेता है तो बोलते ही रहता है, When he takes the word of Christ, he उसकी बातें starts खत्म नहीं speaking. होती। His words never end. यदि संसार की बातें कहना है If you want to speak the worldly उतना things, बोलिए जितना जरूरी है। then speak the way it is necessary. पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में मत्ती रचित शुभ समाचार की पुस्तक अध्याय 10 का वचन 28 में पढ़ेंगे। Book of Matthew chapter 10 verse 28 we will read. परमेश्वर के वचन में मत्ती की पुस्तक 10 के हम लोग 28 में पढ़ेंगे। जो शरीर को घात करते हैं जो शरीर को घात करते हैं, पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, आहा, उनसे मत डरना, आहा, पर उन्हीं से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। यानी कि उन लोगों से जरूर आप बच कर रहे जो आपके शरीर को तो शरीर को परंतु आपके आत्मा को नुकसान करने वाले हो। But rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell. हमारे भारतवर्ष में उत्तर भारत में एक बात कहते हैं, In our India, they say one thing. जैसे तेरी संगत होगी वैसे ही तेरी रंगत भी होगी। जैसे तेरे उठ बैठने वाले दोस्त होंगे वैसे ही तेरी भाषा भी बन जाएगी, स्वभाव भी बन जाएगा। The way you will have your companions along with you, then you will have your behavior, the way you speak,
like them only. कोशिश करिए Then try अच्छा बोलने वाले के साथ बैठे। to sit with the one who speaks good. एक दूसरे की बुराई करने वाले से ज्यादातर बात करोगे ना, If you will talk to the one who speaks bad about others, वो ऑटोमेटिकली एक दिन आपके भी जीवन में आना शुरू हो जाएगा। he one day will start entering in your life also. जो दारू पीने वाला व्यक्ति होता है वो आपको बुला कर कहेगा आप मत पीना, बट कंपनी देना बैठ के। The one who drinks will never say to you that you drink along with me. He will just say आप that मत you पीजिएगा, You do not drink. आप बैठिए चुपचाप, आप पेप्सी पीजिए। You just sit aside and drink. क्या पीजिए आप? What we need to drink? आप बस अब नमकीन खाइए, हम पी रहे हैं। You just give the company. मेरे अजीजों, My dear friends. जब उसके बगल में बैठोगे ना, When you sit beside धीरे 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 धीरे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, एक साल के बाद आप भी उसका इस्तेमाल करने के आदी हो सकते हो। If you will hang out or give the company to the person, you will slowly after a year you will become like him and you will start using all those alcoholic things. इसलिए जिस रास्ते में जाना ही नहीं है, That is why the way you shouldn't even उसका walk. एड्रेस गूगल में ढूंढना ही क्यों है? Then why do you search the address of it? मेरे अजीजों, My dear friends. प्रभु यीशु मसीह नैतिकता की बातें करता है। Now Jesus talk about the good things. पूरी दुनिया यदि यीशु को मानती है तो वैसे ही नहीं मानती है। If people believe in Jesus, they do not believe in vain. पढ़े लिखे देश, पैसे वाले देश, बड़े बड़े देश विदेश, हमारे भारतवर्ष में भी इतने लोग यदि प्रभु को स्वीकार किए हैं तो बातों में नहीं किए हैं। Now the people who are intelligent, really wise and literate, if they accepted Jesus, they didn't accept it in प्रभु vain. की शिक्षा है कुछ ऐसी है, The teachings of Christ वो are जीने such. के बारे में बताती It है। teaches us वो about इंसान living. की हकीकत 6000 साल पहले से लिख के रखी है। It wrote the reality of human 6,000 years मैं before. प्रभु का सेवक होने के नाते आपसे निवेदन करना I चाहता हूँ, request to you, being a servant of God, आइए हम सब एक निर्णय लें। come let us all take a हम decision. कम बोलेंगे, We'll speak less. यदि बोलेंगे We'll speak, तो प्रभु की वाणी then बोलेंगे। we'll speak the oracle of God. हम एक दूसरे की बुराई नहीं करेंगे। We will never say bad to वो others. गलत है, ये गलत है, वो बिल्डिंग लंबी, वो बिल्डिंग टेढ़ी, ये बिल्डिंग इधर है। That this is wrong, that is wrong, the building is wrong. हाथ जोड़ के विनती है, This is my request to you. हम दूसरों को गलत बोलकर अपने जीवन को गलत क्यों करें? Why do we spoil our life by telling wrongs to प्रभु others? हमें सिखाता है, God teaches us. हम प्रभु को माने, Let us all believe. हम क्षमा करना Let सीखें, us be the one who प्रार्थना forgives. करना Let us सीखें all और learn to पाप pray. से बचे रहें। And let us be away from कोई the यदि sin. गलत कर भी रहा If है, somebody is doing आप wrong, प्रार्थना करिए, you pray to समझाइए, them. You teach them. नहीं समझता If they है, do not, आप सुधर जाइए। then you correct yourselves. दूसरों को सुधारने के चक्कर में अपने आप को गलत मत करिए। Now, while teaching others, do not spoil yourselves. आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना में Let us जाएंगे। all close our eyes. We'll pray. सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना में We'll जाएंगे। close our eyes and we will pray. हमारे बीच में सरोज दीदी है, वो प्रार्थना करेंगे। आइए अपनी आंखें बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। स्तुति के योग्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस रात के समय के लिए। आपने परमेश्वर पिता हम सब को अपनी उपस्थिति में बैठाया और मौका दिया कि परमेश्वर पिता हम आपके वचनों से कुछ बातें सीखने पाएँ। हम दे प्रभु जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, जितने भी प्रभु परमेश्वर पिता आज तेरे वचन को सुना है, वो इस वचन को प्रभु अपने जीवन में इस्तेमाल करें, गुस्सा ना करें, बल्कि यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलकर हम स्वर्ग के वारिस बने। प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपके दास के लिए भी परमेश्वर पिता, आपने पिछले दिनों से अब तक इन्हें संभाला, उम्र दी, स्वस्थ शरीर दिया। होंदे परमेश्वर पिता आप अपने दास की सेवा को आशीषित करें। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, Almighty हम God, प्रार्थना करते हैं we pray पूरे विश्व के लिए प्रभु, for the world, Father, हमारे भारत के राष्ट्रपति जी के लिए, For our प्रधानमंत्री जी के लिए और तमाम हर स्टेट के चीफ मिनिस्टरों के for all लिए, the, I pray for all the Prime Minister, President and all the Chief Ministers and for also India. तमाम डॉक्टर्स के लिए, फौजी भाइयों के लिए, पुलिस के लिए, आर्मी के लिए हम प्रार्थना करते We हैं। pray for all the doctors, police and armed forces. आपकी दया और आपकी आशीष हर एक के जीवन में बनी रहे। Let your blessings and kindness be in everybody's life. जो लोग प्रभु इस लॉकडाउन के समय गरीब भाई बहन प्रभु मजदूर जो परेशान हुए हैं,
Father, let the people, those who are struggling a lot during this lockdown, प्रभु during this आज के virus, दिन भी जो परेशान हैं, दुखों में हैं, संकट में हैं प्रभु, those who are still in problems and difficulties until today, पिताजी आप उनके लिए प्रबंध करें, Lord, you provide for them. सहायता करें You प्रभु। send the help to them. प्रार्थना करते हैं प्रभु Thank you, Jesus. न्यूजीलैंड के लिए, फिजी के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, अमेरिका के लिए, इटली के लिए, फ्रांस के लिए, दुबई के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, फिलीपींस के लिए, नेपाल के लिए, पाकिस्तान के लिए, कुवैत के लिए, श्रीलंका के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, श्रीलंका के लिए प्रभु, मलेशिया के लिए, भूमंडल के तमाम उन देशों के लिए हम प्रार्थना करते Father, हैं। we pray for all those countries. जिस कंट्री में परमेश्वर, जिस देशों में ये कोरोना नाम का वायरस है प्रभु, उन तमाम कंट्रियों में आप अपनी चंगाई और छुटकारे को दीजिए परमेश्वर। Wherever this coronavirus in whatever country it is spreading, Father, we pray you stop it and you give the healings to them. पिता परमेश्वर आप उन देशों की रक्षा और मदद और हिफाजत करिए Father, परमेश्वर। you protect and guard those countries. पिता परमेश्वर हम चाहते तेरी कृपा के लिए, Father, we need your blessings. तेरी आशीष को हम Kindness, चाहते Father, हैं we need your blessings, पिता। Jesus. हर एक धार्मिक, हर एक परमेश्वर पिता उन धार्मिक गुरुओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन पर तेरी दया और तेरी आशीष हो प्रभु। Father, we pray for all the religious and for all the social workers, let your mercy be on them. हम प्रार्थना करते हैं हर एक सामाजिक कार्यकर्ता पर प्रभु। Father, we pray for all the social workers, leaders. पिताजी उन सब के साथ आप बने रहे। Father, you be with each one of them. धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। Thank you, Father, for you heard our prayer. यीशु मसीह के पवित्र नाम में यह दुआ मांगते In the holy name of Jesus, we ask this prayer. हैं, आमीन। Amen. आप सभी को परमेश्वर आशीषित करे God bless you all. और मेरी बातों में कोई भी कमी हो तो आप मुझे माफ करें। If there is something wrong in what I said, then please forgive us. यदि अच्छी है कुछ बातें तो जरूर उसे जीवन में अपनाएं। And if some things are good, useful for you, then use it in your life. कई बार ऐसा होता है कुछ बातें वो ऐसा लगता है कि ये मेरी जरूरत की नहीं है Sometimes we feel that these things are not for us. और मेरी ना तो आदत है ना तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं किसी के उसके हिसाब से वो बातें कहूँ। Now I want to speak the word of God according to them, कोशिश ये करता हूँ जो बाइबल में लिखा हो बताने की कोशिश करूँ। but I try to speak what is written in the Bible. मेरा निवेदन है My request is, प्रभु के वचन को ज्यादा पढ़िए, जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज्यादा उसको समझेंगे, आप उतना ही वैसे ही बनते चले भी read the जाएंगे। word of God. The more it happens, the more you read it, the more you will grow in the presence of God.